Assalamualaikum students. I'm your teacher, Ma'am Sahrish Shahid, and today we will start the second chapter of physics of class 9, that is kinematics. So first of all, we have to study the definition of the kinematics, and for this you must have your box, registers and pencil with you so that you can note down the important points related to today's lecture. Now please open your books and I will also share the book with you. Open page number 28. And here we have a definition of kinematics. Kinematics is the study of motion of an object without discussing the cause of motion. कि हम kinematics में स्टडी करते हैं मोशन को, मूवमेंट ऑफ द बॉडी विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन. हम उसमें ये डिस्कस नहीं करते कि बॉडी क्यों मूव की थी, क्या रीजन था जिसकी वजह से बॉडी ने मूव की. यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को तो स्टडी करते हैं, मूवमेंट को तो स्टडी करेंगे कि बॉडी मूव कर रही है, लेकिन हम ये स्टडी नहीं करेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, कि बॉडी की मोशन का कॉज क्या था. ठीक है, मतलब हम इसमें डिस्कस करेंगे लाइक हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, how much the acceleration is produced, how much the velocity is produced in the body, but we are not discussing with the cause of motion. ठीक है. अब there are two terms which are very similar to each other, that is kinematics and kinetics, not the kinetic energy, only kinetics. So students are always confused with these two terms, that what is the difference between the kinetics and kinematics. So for this I will share you a slide. Here is the answer. What is the difference between kinematics and kinetics? Kinetics is basically the study of forces that causes a motion. Kinetics में हम वो forces study करते हैं जिनकी वजह से body जो है वो move कर रही होती है, like torque आपके पास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क की वजह से फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है. ग्रेविटी इज आल्सो अ फोर्स, फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स. तो ऑल दीज टर्म्स आर बेसिकली द फोर्सेस. इन फोर्सेस को हम स्टडी करते हैं जिनकी वजह से कोई भी मोशन प्रोड्यूस होती है, एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. काइनेटिक्स इज classified into two groups, linear and angular motion, right? Now in kinematics, the study of describing the movement. हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब forces का कहीं जिक्र नहीं आ रहा है. We are only dealing with the movement, that how the motion is produced, किस तरह से body move कर रही है, displacement, time, velocity, acceleration, distance. ये तमाम terms हम kinematics में study करते हैं कि body displacement cover कर रही है, how much time is needed for the body to cover some distance, कितनी velocity produce हो रही है, how much acceleration is produced in the body, how much distance the body is covered. तो ये तमाम चीजें हम स्टडी करते हैं in kinematics. There is another a flow chart that which shows the difference between the kinematics and the kinetics. Look at this. Kinetics, it is the study of forces that are acting on the object under a particular mechanism. Same जो हमने पीछे पढ़ा कि ये वो उन forces को डील करता है जो कि बॉडी को मूव करवाती है. बट इन kinematics, concerned with the motion of an object without reference to the forces which causes. हम यहाँ पे सिर्फ बॉडी की मोशन को, सिर्फ बॉडी की मूवमेंट को डील कर रहे होते हैं. हम यहाँ पे ये स्टडी नहीं कर रहे होते कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से बॉडी जो है वो मूव कर रही है, राइट? So hope you have understand the concept of kinematics and kinetics. Now our next topic is rest and motion. First of all, what is the rest and what is the motion? A body is said to be at rest if its position does not change with respect to a fixed point in its surrounding, and a body is said to be in motion if its position continuously changes with respect to its surrounding changes with time. यानी अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, चेंज नहीं कर रही with respect to some observer,
ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि वो शख्स जो कि उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको इस तरह से देती हूँ। फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन द रूम, आप रूम में बैठे हुए हैं और कोई भी आपके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैलून है और वो कंटिन्यूसली कमरे में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। हाँ, यू आर द ऑब्जर्वर, आप एक ऑब्जर्वर हैं और वो जो आपके पास बैलून है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इट मीन्स कि वो रेस्ट पे नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल आपके कमरे में चेयर पड़ी है और वो कंटिन्यूसली रेस्ट पे है, इट मीन्स कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। तो एक ऐसी चीज जो कि किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, इट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट। और अगर बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब यही है कि अब हम चेयर को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो चेयर तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अराउंड जो भी चीज है, कमरा है, कमरे में इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो सराउंडिंग है। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो रेस्ट पे है। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इट मींस दैट इज इन मोशन। द एग्जांपल ऑफ द रेस्ट इज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, द बेंच फिक्स्ड इन द पार्क। तो आप देखिए, आप बेंच पार्क में पड़ा हुआ है, जब आप उसको, आप 2 घंटे तक उसको देखते रहे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आप बेशक अपनी पोजीशन चेंज करें लेकिन वो जो बेंच है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, इट मींस द बेंच इज एट रेस्ट। सेम द बुक लाइंग ऑन द टेबल, आप 10 घंटे तक बुक को देखते रहे, बुक कभी भी खुद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, इट मींस द बॉडी इज एट रेस्ट। अगेन द एग्जांपल ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, when you are observing the bird, it can change its position with the passage of time। वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, कभी एक जगह जा रही है, कभी दूसरी जगह जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू यू, आपके लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इट मींस दैट इज इन मोशन। अ बॉल प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो इट मींस द फुटबॉल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग द पोजीशन, कभी एक बच्चे के पास है, कभी दूसरे बच्चे के पास है, तो इट मींस कि आपके पास बॉडी जो है वो इन स्टेट ऑफ मोशन है। अगेन यहाँ पे एक आपको नोट नजर आ रहा है, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर, अ बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। अब ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, दे आर रिलेटिव टू ईच अदर, यानी एंड वन बॉडी कैन बी एट रेस्ट और कैन बी एट मोशन एट द सेम टाइम। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो एट द सेम टाइम? यस, इट इज पॉसिबल। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसके लिए यू विल ओपन द बुक, आप सिर्फ अपनी बुक्स ओपन करें, जैसा कि पेज मैंने आप लोगों को बताया, यू हैव टू ओपन द पेज 29 ऑफ योर फिजिक्स बुक 9। यहाँ पे आपके पास इन दिस पैराग्राफ, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है ट्रेन एंड द पैसेंजर। उसकी एग्जाम्पल कैसे दी है? फॉर एग्जाम्पल, you are going to the railway station and you are sitting in the train, you and train both are at rest, and some one of your relative like your mother, your father is standing outside the train is at rest। अब आपके लिहाज से आप अंदर बैठे हुए, ट्रेन भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, बाहर जो आपका रिलेटिव खड़ा है, फादर मदर सिस्टर ब्रदर व्हाटएवर, वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ना आप पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं। तो आपके लिहाज से योर दैट मदर फादर इज एट रेस्ट और उनके लिहाज से आप भी रेस्ट पे हैं। ठीक है, नाउ द ट्रेन स्टार्ट इट्स मोशन, ट्रेन ने अपनी मोशन स्टार्ट कर ली है। नाउ द अदर पैसेंजर्स विच आर सिटिंग विद यू, जो कि आपके साथ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, जब आप उनको देखेंगे तो दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशंस। वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो उसी जगह पे बैठे रहेंगे, दे आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू। अगर हम आपको ऑब्जर्वर समझ रहे हैं कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे, इट मींस दे आर एट रेस्ट। नाउ द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन, लेकिन जो शख्स ट्रेन से बाहर खड़ा है, फॉर एग्जांपल योर फादर योर मदर, अगर वो उस पर्सन को देख रहे हैं, उस पैसेंजर को देख रहे हैं या आपको देख रहे हैं,
तो आप उनके रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन विद द ट्रेन, ट्रेन के साथ आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो, इट मीन्स यू आर और दैट पैसेंजर आर इन मोशन। जो लोग अंदर बैठे हैं उनके लिए आप रेस्ट पे हो, लेकिन जो लोग बाहर हैं उनके लिहाज से आप मोशन में हो। सो दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। दोनों टर्म्स रेस्ट एंड मोशन ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। You at the same time in the state of rest and at the same time you are in state of motion with respect to two different observers। यहाँ पे बात आती है two different surroundings की, two different observers की, कि दो लोग, दो observers आपको observe कर रहे हैं या दो different सराउंडिंग्स हैं। ट्रेन की अपनी एक सराउंडिंग है, ट्रेन एक सराउंडिंग एरिया, उसके लिहाज से वो आपका एक नेबर है, उसके लिहाज से आप रेस्ट पे हो। लेकिन अगर हम बाहर की दुनिया की बात करें, बाहर की सराउंडिंग की बात करें, तो उनके लिहाज से आप क्या हो, इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से अब क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द काइनेमैटिक्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द काइनेमैटिक्स, व्हाट इज रेस्ट, गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज मोशन, गिव एन एग्जांपल, और हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो उसके लिए आपको प्रॉपर उसको बताना है और उसका कॉन्सेप्ट आप यही इसी पैराग्राफ की मदद से अपना आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, hope you can understand the topic. In case of any query you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.